Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, student. Today I'm going to solve the question of exercise 1A of Oxford Mathematics 8th edition D2. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start the question number 6 of exercise 1A. Question 6, the vertices of right angle triangle are A10, B70, C16. Plot the point ABC on the plane below, hence find the area of the triangle. Firstly, we have to plot the point A, B, and C. Look here, the first point here is A. The coordinates of A are 1, 0. Firstly, we mark 1, 0. Here, the x coordinate of point A is 1. Therefore, we move 1 unit along x-axis and the y coordinate is 0. Therefore, we will not move along y-axis because the y coordinate is 0. Therefore, this point will be 1, 0. We will mark 1, 0. Next point, B, we will mark B. The B is 7, 0. Therefore, the x coordinate is 7. Therefore, we will move 7 unit along x-axis. And you see here, this is the position of 7 on x-axis. Then we will move 0 unit along y-axis. It means we will not move along the y-axis. This point will be 7, 0. We write down the point 7, 0. Next point is C16. Look here, the x coordinate is 1. We will mark 1 and 6 is the y coordinate. Therefore, firstly, we will move along x-axis 1 unit and then from this axis, we will move upward 6 unit parallel to y-axis. And this position will be 1, 6. And you see here, the y coordinate is 6 in front of this point and the x coordinate is 1. And this is 1, 6. Next here is we have to find the area of triangle. We will join all these points by a straight line to find the area of triangle. Look here, we will join these points by a straight line. And this line is AC, and next is BC, and we will join B to next is AB, and we will join A to B to C. This is the line BC. You see here, this is the right angle triangle. The area of triangle that will be equal to 1/2 multiply base length multiply by height. Here is the base length is AB and the height is AC. We will write the length of AB here. You see here, the 1, 2, 3, 4, 5, 6. The distance between A to B is 6. We will write 6 multiply AC. AC is the height. You see here, this distance is 1, 2, 3, 4, 5, and 6. This is 6 unit. Therefore, 36/2. This will be equal to 80 units square is the area of this triangle. Now we will move the next question of this exercise. Exercise 1A, question number 7, plot the following points on the plane in question number 6. 3, -5, 2, -3, 1, -1, 0, 1, -1, 3, -2, 5, -3, 7. Do you notice the points lying in a special pattern? Describe the pattern.
Firstly, we will plot the points on this Cartesian plane. Look here. The first point is 3 minus 5. The x coordinate here is 3 and the y coordinate is minus 5. Therefore, firstly, we will move 3 unit along the x-axis. This is 1, 2, 3. This is 3. And then we will move vertically 5 unit. But here value is minus 5. Therefore, we will move downward 5 unit. This is minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. This point is 3 minus 5. Next is 2 minus 3. Same here. Firstly, we will move along the x-axis 2 unit. And then we will move downward 3 unit. Then 1, 2, 3. This is 2 minus 3. Therefore, this point name is as 3 minus 5. Next point is 2 minus 3. And next is 1 minus 1. You see here, firstly, we will move 1 unit along y-axis and then 1 unit vertically up or downward. You see here, this is negative 1. Therefore, we will move downward 1 unit. This is 1 minus 1. Next point is 0, 1. You see here, the x coordinate is 0. Therefore, we will not move along x-axis, but 0, 1. Therefore, y coordinate is 1. We will move 1 unit upward. This is 0, 1. And next is minus 1, 3. And this is minus 1. And this is 3. You see here, the x coordinate is minus 1. Y is 3. Next is minus 2, 5. And we will mark here is the minus 2, 5. Firstly, we will move x along the x-axis, 2 unit left side because the x coordinate is negative 2. Then we will move 5 unit upward because the y is 5. Y coordinate is 5. Therefore, this is 2 minus 2, 5. And last is minus 3, 7. This is minus 3, 7. Now we will join all these points. Look here, when we join all these points, we get a straight line. Therefore, this pattern is a straight line. We write here is straight line pattern. Now, next question of this exercise. Question 8, the equation of the function y equal to 2x, 2 over 3x plus 1 over 3 and find the value of y when x equal to minus 3. इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट फर्स्ट कर रहे हैं और इधर हम फंक्शन लिख लेंगे. इसका फंक्शन है y equal to 2 over 3x plus 1 over 3. पार्ट फर्स्ट में x minus 3 दिया है तो हम यहाँ लिख लेंगे when x equal to minus 3 then y value of y as it is लिख लेंगे. इधर इक्वल है वो लिख लेंगे as it is 2 over 3 as it is लिख लेंगे और x की जगह यहाँ पर हमने ब्रैकेट में उसकी वैल्यू लिख देंगे -3 क्योंकि 2 over 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे और +1 over 2. तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी -6 over 3 + 1 over 3. तो हम इसको लिख सकते हैं -6 + 1 over 3. क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो इसलिए हमने न्यूमरेटर्स वैल्यूज को ऐड कर लिया. अब हमारे पास आंसर आ गया है -5 over 3. तो मिक्स फ्रैक्शन में 3 1s are 3, 2 is a remainder, 3 as it is हम लिख लेंगे तो -1 2 over 3 हमारा इसका आंसर आ जाएगा. इसका पार्ट सेकंड है, आपने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ y when x equal to 1 1 over 2. y की वैल्यू फाइंड करनी है और x की वैल्यू 1 1 over 2 है. तो हम इस फंक्शन में x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे. अब हम इसमें y एज इट इज लिख लेंगे इस फंक्शन का और 2 over 3 एज इट इज. वैल्यू ऑफ x की जगह हम इसकी x की वैल्यू लिख लेंगे. यहाँ पर x की वैल्यू को हम मिक्स फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो ये वैल्यू 2 टाइम 1 is 2 + 1 3 over 2 और यहाँ हम लिख लेते हैं 3 over 2 प्लस एज इट इज 1 over 3 एज इट इज. तो ये देखें ये आ गई 2 टाइम 3 is 6 over 12 plus 1 over 3.
अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको 3 से इसको डिवाइड कर लेता हूँ। तो ये डिवीजन 6 टाइम 1 इज 6, 6 टाइम 2 इज 12, 1/2 प्लस 1/3। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये 6 आ गया है। तो डिनोमिनेटर इसको 6 बनाना है, इसको 3 से फर्स्ट फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड को 2 से। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई 3 + 2 एंड 5/6 और y का आंसर आ जाएगा 5/6। Question 8, part B. First part, y equal to 2/3x plus 1/3. When y equal to 1, then find x. यहाँ पर वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है। वैल्यू ऑफ y की जगह वैल्यू लिख लेंगे, y की वैल्यू 1 है। इस इक्वेशन में हमने पुट कर दी y इक्वल टू 1 और 2/3 एज इट इज लिख लेंगे, और x की जगह हम x लिख लेंगे एज इट इज, और प्लस 1/3 एज इट इज लिख लेंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि 2/3 x में x + 1/3 को हम राइट से लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे, ये -1/3 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी 3 से। तो ये हो जाएगा 3/3 -1/3 इक्वल टू 2/3 x। तो ये अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें। 3 - 1 is 2, 2/3 इक्वल टू 2/3 x। तो ये 2/3 को हम राइट से लेफ्ट पे शिफ्ट करते हैं। तो ये राइट से लेफ्ट पे जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये हो जाएगा 3/2, और 2 2 से कैंसिल हो गया, 3 3 से कैंसिल हो गया, तो 1 आ गया। तो 1x इक्वल टू 1 वैल्यू आ गई हमारे पास जो हमने फाइंड करनी थी। हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट सेकंड पार्ट बी का है कि व्हेन y इक्वल टू -1/6, तो when y इक्वल टू -1/6, then y will be equal to 2/3x plus 1/3। y की जगह हम उसकी वैल्यू लिख देते हैं -1/6, 2/3 एज इट इज लिख लेंगे, प्लस 1/3। तो -1/6 और 1/3 को हम शिफ्ट करेंगे राइट से लेफ्ट साइड पे, तो ये हो जाएगा -1/3 इक्वल टू 2/3x। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2/3x, तो इनके डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, इसको डिनोमिनेटर को भी 2 से, न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा -1/6 -2/6। ये आ जाएगी वैल्यू -3/6 इक्वल टू 2/3x। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, -3/6 और 2/3 राइट से लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2/3 इधर आकर रेसिप्रोकल हो गया 3/2। तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है x इक्वल टू -9/12। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 टाइम 3 इज 9, 3 टाइम 4 इज 12। तो x की वैल्यू -3/4, और ये हमारा आंसर आ गया है जब y की वैल्यू हमारे पास थी -1/6। तो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3/4। ये आंसर आ गया है। अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9। Let's start the question number 9 of exercise 1A. In this question 9, two of the vertices of triangle ABC are A and B. The area is 12 units square. The y coordinate of C is 1 unit. By plotting points A, B, C on Cartesian plane, determine the x coordinate of C. क्वेश्चन 9 में नोट करें कि यहाँ 3 पॉइंट्स ट्राइंगल्स के गिवन हैं, A, B एंड C। लेकिन जो पॉइंट C है इसका सिर्फ y कोऑर्डिनेट दिया गया है और x कोऑर्डिनेट हमने फाइंड करना है। इसलिए हम सपोज कर लेंगे कि लेट x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C इज A। अब पॉइंट C क्या बन जाएगा, जिसमें x कोऑर्डिनेट A हमने सपोज कर लिया है और y कोऑर्डिनेट जो है वो 1 गिवन है, तो C1 A1 हो जाएगा। अब हमने इन पॉइंट्स को मार्क करना है। ये ग्राफ
क्वेश्चन 6 का है, वो मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया है। तो आपने पॉइंट मार्क कर लेते हैं। पहला पॉइंट है A11। तो A11 में एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, तो हम एक्स एक्सिस के अलोंग 1 यूनिट मूव करेंगे, और y सेकंड वैल्यू y कोऑर्डिनेट को शो करती है, और फिर हम वर्टिकली अपवर्ड y एक्सिस के पैरेलल 1 यूनिट मूव करेंगे। तो ये पोजीशन हमारी A पॉइंट्स की आ जाएगी 1 1। इसी तरह अब हम पॉइंट B को मार्क करते हैं। पहले हम 5 यूनिट हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे 5 यूनिट मूव करते हैं, और फिर y कोऑर्डिनेट 5 है, तो इसलिए हम फिर वर्टिकली अपवर्ड 5 यूनिट y एक्सिस के पैरेलल मूव करते हैं। तो ये पॉइंट B की वैल्यू आ जाएगी 5 5। अब इन पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर लूं तो ये AB एक लाइन, स्ट्रेट लाइन बन गई है। नेक्स्ट पॉइंट C को हमने मार्क करना है। अगर C के कोऑर्डिनेट A1 है, तो C एक ऐसी लाइन पर लाई करेगा जिसके y कोऑर्डिनेट्स 1 होंगे, यानी कि वो लाइन जो कि y एक्सिस से पास होगी और पैरेलल टू x एक्सिस होगी। जैसे कि ये एक लाइन मैंने मार्क की है, तो इस लाइन में तमाम पॉइंट्स y कोऑर्डिनेट के 1 रहेंगे। तो इसलिए C इस लाइन के ऊपर कहीं भी लाई करेगा। अब हमने ये देखना है कि ये पॉइंट किस पोजीशन पे लाई करेगा। तो उसके लिए हम एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले को यूज करते हुए AC लेंथ को फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर आप नोट करो कि जो ट्राइंगल का एरिया है वो 12 है, और बेस लेंथ हमारे पास, आप अगर मैं इस लाइन के ऊपर बेस कंसिडर करूं तो C इस लाइन पे कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो AC हमारी बेस लेंथ है, और हाइट जो है वो आपको पता है कि इस बेस की हाइट कांस्टेंट रहेगी, और इस बेस से इस B का जो डिस्टेंस है 1 2 3 4 4 यूनिट है। तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी 4 टाइम 2 इज 2, तो 2 टाइम ऑफ AC इक्वल टू 12। तो AC की वैल्यू मेरे पास 6 आ जाएगी। अब इसका मतलब ये है कि C पॉइंट A से 6 यूनिट राइट या लेफ्ट साइड पे मौजूद है। अगर ये राइट साइड पे 6 यूनिट है, तो देखें 1 2 3 4 5 6, दिस विल बी द पोजीशन ऑफ C। और ये पोजीशन पे कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या है, 7 1 है। और इसी तरह अगर हम लेफ्ट साइड पे मूव करें 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू -5 और वाई की कोऑर्डिनेट तो वही होगा 1, तो -5 1 आ जाएगा। तो ये दो पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगी सी की। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सी आर -5 1 एंड 7 1। इसमें एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यूज -5 और x इक्वल टू 7, ये हमारा आंसर आ गया।